आज का सेशन जो है ना हमारा स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एम्बेसडर्स हैं, उनके लिए था ताकि उनको एक क्विक ओरिएंटेशन दी जाए कि व्हाट इज़ एलुमनाइट एंड लाइक व्हाट इट डज, और थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें ताकि उनको पता चल जाए कि भाई जो है ना एलुमनाइट क्या चीज़ है और फर्दर जो है ना एज एन एम्बेसडर वो क्या कर सकेंगे. सो बेसिकली एलुमनाइट जो है, दिस इज basically combination of two words. One is alumni and this second one is unite. कुछ लोग इसको Illuminati बोलते हैं, वो गलत है. It's not Illuminati, it's alumnite. Alumni से निकला हुआ है, ठीक है. And the basic motto is like to connect the stakeholders, to grow together and to succeed together. So the agenda of today's presentation is like we are going to have a brief introduction about what Alumnite is. Then in the next section, we are going to discuss some of the benefits of Alumnite. Then we are going to discuss how you can join Alumnite, और फिर उसके बाद जो है ना हमारा fourth section होगा, that is the structure of the Alumnite. And then again, in the end, we are going to have Q&A session. So if you have any question, I would be there and I would be glad to answer them. So let's move right away to the first section, which is like what is Alumnite. जब हम Alumnite के बारे में बात करते हैं तो Alumnite is basically a community. ये कम्युनिटी जो है ना ऑनलाइन कम्युनिटी भी है, बेसिकली हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, but at the same time we are having physical presence as well at different departments of the University of Peshawar. And this community is basically to connect the key stakeholders of the University of Peshawar. And the key stakeholders are students of the University of Peshawar, alumni of the University of Peshawar, and staff of the University of Peshawar. And the platform aims to bring them together, to connect with each other, to network with each other, to share their knowledge and collaborate with each other. So the basic idea is like if we improve the interaction and connectivity between these key stakeholders of the university, it's going to help us out in a number of ways, which is not only going to be beneficial to the students, but it would be beneficial to the faculty members as well, to the alumni of the university as well, and the university as a whole as well. हमारा जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, this is basically a website. The domain name of that website is alumnite.pk. If you go over there, you would get a broader idea कि भाई जो है ना क्या चीज चल रही है Alumnite में. So moving ahead, I'm going to like take you a little bit back so that you get an idea that why in the first place Alumnite was introduced and why this platform was introduced, ताकि आपको जो है ना complete idea हो जाए कि यार ये है क्या चीज. So हमारी यूनिवर्सिटी में अभी जो है ना इस टाइम पे मैं प्रेजेंटेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का नाम बार बार लूंगा क्योंकि ये जो है ना हमने स्टार्ट ही यूनिवर्सिटी में की थी, लेकिन रिसेंटली हम जो है ना और यूनिवर्सिटी के लिए भी हमने अपने डोर्स ओपन किए हैं ताकि वो भी जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को वही बेनिफिट्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी मिले. So as I told you that I am currently working as like manager research operations, but before that I have been working at the university in the administrative cadre since 2006. तकरीबन 18-19 साल हो गए हैं. इन 18-19 साल में तकरीबन 17 years 16 years मैं ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम करता था कि जिनकी जो है ना इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ नहीं होती थी. हमारा ज्यादातर काम जो है ना
डेवलपमेंट के साथ होता था, प्रोजेक्ट्स बनाना, प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना और फिर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना. But a couple of years back, I was sent on a special assignment to Business Incubation Center. यहाँ पे आके जो है ना थोड़ा बहुत मेरी इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा होती गई, because we had to develop a network at different departments for Business Incubation Center in order to be able to take our programs at Business Incubation Center at the departmental level. लेकिन फिर अब जो है ना currently I'm not working at Business Incubation Center. Currently I'm working at Auric. जब मैं interaction करता था different events में students के साथ over the past 2 years, एक problem बार बार आती थी और वो ये problem थी कि students कहते थे कि भाई जो है ना हमारे पास opportunities available नहीं है. Opportunities in terms of personal growth, opportunities in terms of academic growth, opportunities in terms of career growth. So that was the starting point, and I started thinking कि यार ये क्या वजह है कि हमारे students जो है ना ये complain बार बार कर रहे हैं कि opportunities नहीं है. Then I started working on it with some volunteer students, and I realized that the problem was not this, that opportunities don't exist. The problem was basically कि opportunities जो है ना students तक time में पहुंचती नहीं है. We realize कि अगर हम जो है ना mass level पे चलें, अगर काफी सारे students हो, in thousands of students हो, we cannot do it without the use of technology. So this was the basic problem because of which the alumni platform का जो है ना वो basic बुनियाद बनी कि भाई हम इस पे further काम करें. फिर उसके बाद ये हुआ कि USAID का एक project था by the name of HESA, Higher Education System Strengthening Activity. इसमें 16 यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रही हैं. ये प्रोजेक्ट फंडेड था बाय यूएसएआईडी, अमेरिकन यूएसएआईडी, और इस प्रोजेक्ट को जो है ना विन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा ने और यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा ने. उसके काफी 3 मेजर कंपोनेंट्स थे और एक कंपोनेंट जो था वो बेसिकली फोकस था ऑन स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज कि भाई हम यूनिवर्सिटीज जो है किस तरह अपने सपोर्ट सर्विसेज को इम्प्रूव करें ताकि स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वो इम्प्रूव हो जाए. So if I have to quickly tell you that the major areas in student support services were it was based on a research done by Pakistan Institute of Development Economics. And they identified 6 major areas in which the universities need to work. The first one was financial support. The second one was student entrepreneurship, student leadership, student की जो है ना psychosocial support उनको देना. उसके अलावा जो था ना executive leadership था, और भी जो है ना इस तरह 6 major areas थे. एलुमनाई का एरिया था कि भाई हम एलुमनाई को यूटिलाइज करें और उसको जो है ना एंगेज करें और यूनिवर्सिटी के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या अदर प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जो है ना क्या करें सॉल्व करें थ्रू एलुमनाई. तो एलुमनाई मैं छोटा सा आपको वो दे दूं. नॉर्मली जब जो है ना इफ यू आर एन एलुमनाई ऑफ ए यूनिवर्सिटी यू हैव इमोशनल अटैचमेंट विद योर अल्मा मैटर. So people tend to contribute back to their universities, and if you go through literature you would understand that there are 3 major ways through which alumni can contribute back to their alma maters. One is by donating their time in volunteer activities. The second one is through talent. The second T है टैलेंट मीन्स कि अगर किसी के पास कोई एक्सपर्टीज है तो उसके बेसिस पे वो यूनिवर्सिटी को सपोर्ट दे. एंड ट्रेजर, अगर आप जो है ना बाय यूनिवर्सिटी देखें
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ले लें या MIT ले लें या इसी किस्म के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले लें, अगर आप उनकी फंड रेजिंग के एस्पेक्ट से देखें तो इनकी मेजॉरिटी ऑफ द बजट इज गिवन टू देम बाय देयर एलुमनाई। तो ये तीन चीज जो है, लाइक देयर टाइम, देयर टैलेंट एंड देयर treasure, they can contribute back through this to their alma mater. अब जब जो है ना इसी one of the university in these 16 universities which were participating in HASA program was University of Peshawar. तो इसमें जब हम डिलिब्रेशन करते थे यानी कि इन 6 एरियाज में, तो अगेन हमारे पास ये इशू आता था कि यार अगर लेट्स से उस टाइम पे मैं लीड कर रहा था स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप के एज अ फोकल पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। सो आई वुड टेल देम कि यार अगर आप यूनिवर्सिटीज को देंगे तो यूनिवर्सिटीज पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और अगर आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को लेते हैं तो उसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी कम है। तो अगर आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है और आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज भी कम है, तो आप किस तरह मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं 17,000 स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की करंट एनरोलमेंट इज लाइक 17,000 स्टूडेंट्स ऑन कैंपस, तो 17,000 स्टूडेंट्स को मैं किस तरह जो है ना स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैं उनको सपोर्ट दूं। The same very question was raised by the career development वाले थे, इसी तरह स्किल्स डेवलपमेंट वालों ने भी इसको रेज किया, साइकोसोशल सपोर्ट वालों ने भी इसको कहा कि भाई we don't have the resources to do that. So that was the point कि we started at University of Peshawar, we started that why not we use the internet technologies to be able to like provide these different sort of services. हम database बना लें, उसमें हमारे पास students हों, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस डेटाबेस के थ्रू जो है ना हम उनको ये सारी डिफरेंट जो 6 सर्विसेज हैं ये हम उनको प्रोवाइड करें। So this was the overall idea. Okay, so these were the issues that were there कि भाई कैसे जो है ना हम मल्टीपल एरियाज में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में, हम कैसे जो है ना टेक्नोलॉजी को यूज करें, कैसे जो है ना वॉलंटियरिज्म को यूज करें, कैसे एलुमनाई को यूटिलाइज करें, ताकि जो है ना हम ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं यूनिवर्सिटी के उनको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और इनको जो है ना फर्दर इंप्रूव कर सकें। So that's how the Alumnite came into being. This was the whole background which we went through, and to be very honest, जहां तक जो है ना ऑफिशियल सपोर्ट की बात है वो जो है ना थोड़ी यूनिवर्सिटी में मुश्किल होती है। सो आई स्टार्टेड विद स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वॉलंटियर स्टूडेंट्स के साथ हमने काम किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर a community of round about 3,900 students. और 3,900 स्टूडेंट्स में तकरीबन 3,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के हैं। अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले हमने जो है ना और यूनिवर्सिटी वालों को भी जो है ना इसमें इंक्लूड करना शुरू कर दिया, बिकॉज वी अपग्रेडेड आवर प्लेटफॉर्म एंड द न्यू प्लेटफॉर्म was able to support many more students than the previous platform. So this was the background. Now coming towards the Alumnite vision. Vision में जब हम बात करते हैं तो कि भाई how do we see ourselves being the volunteers of Alumnite? How do we see Alumnite in the next 4-5 years? So I told you earlier कि भाई हम एक community है जो कि online भी है और in person भी है। We want to be a thriving and vibrant and interconnected community जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे, जो कि एक दूसरे के साथ नेटवर्क करे, जो कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करे और एक दूसरे को सपोर्ट दे, ठीक है, और सारे स्टेक होल्डर्स को इससे बेनिफिट हो। चूंकि स्टूडेंट्स प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, तो हमारा अभी तक ज्यादा फोकस जो है वो स्टूडेंट्स तक ही महदूद है in the first phase. In the next phase, we are going to like extend our boundaries to include the alumni, ताकि उनको हम ले आए और alumni
और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन भी पॉसिबल हो जाए। और दूसरा ये है कि इस कम्युनिटी की, ये वाइब्रेंट और थ्राइविंग कम्युनिटी जो है, this is not only for academic development, but also for career development, also for personal development, and also for the institutional growth. We believe that different students, all of the students are very brilliant. हर किसी में जो है ना कोई एक्सपर्टीज होती है। अगर हम इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि उस पे ये सारे स्टूडेंट्स आके अपनी जो है ना एक्सपर्टीज को और अपनी क्रिएटिविटी को और अपने टैलेंट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लें, तो न सिर्फ उनको फायदा होगा बल्कि बाकी स्टूडेंट्स को भी जो है ना काफी सारा फायदा होगा। So in this slide, I have already shared the slides with you. You can go through them in detail. I would just keep it short at this moment so that we have more time for question and answer session. So the next, अगर जो है ना हम गोल के बारे में बात करें कि एलुमनाई की गोल क्या है, we want to facilitate networking among these different stakeholders of the universities. We want to promote collaboration between them. We want to promote knowledge sharing. हम ये चाहते हैं कि भाई जो है ना हमारी यूनिवर्सिटीज जो है उनकी अपनी कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए, यूनिवर्सिटीज के बेनिफिट्स कम्युनिटीज को मिलना शुरू हो जाएं, हम अपने स्टेक होल्डर्स के स्टूडेंट्स हों या एलुमनाई हो उनकी करियर डेवलपमेंट में जो है ना कंट्रीब्यूट करें, हम जो स्टूडेंट्स या जो एलुमनाई हमारे जो है ना टॉप परफॉर्मिंग है उनकी विजिबिलिटी को प्रमोट करें। एंड one of the most important thing is like we also want to promote the concept of philanthropy and volunteering among the students and among the alumni. So moving ahead, after the goals, let's move ahead to the core values that we have at Alumni. Just quickly going through them: trust and integrity, collaboration, we want to empower, excellence, lifelong engagement, and service to the university. These are the primary values that shape and that define who we are and what we want to become. Now, this was a brief introduction about the alumni. अब जो है ना हम specifically आ जाते हैं students के बारे में कि alumni students के लिए किस तरीके से beneficial है. So, अगेन अगर आप जो है ना, मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट वो शेयर किए थे, लिंक शेयर किए थे, उसमें एक लिंक था फॉर द स्टूडेंट मेंबरशिप जहां पे वो जाके रजिस्टर हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑलरेडी वहां पे उस पेज पे मौजूद है। मैं क्विकली आपको बता दूं कि वन ऑफ द एरियाज लाइक some of the major areas that we are having are primarily influenced by the HESA program that I talked about. In that program, उसमें एक एरिया जो था वो ये था कि हम अपने स्टूडेंट्स की स्किल्स को डेवलप करें, स्किल्स को बूस्ट करें, ताकि जो है ना वो एकेडमिक लाइफ में और करियर लाइफ में अपॉलॉजीज वो सर्वाइव कर सकें और वो सक्सीड कर सकें। द नेक्स्ट वन वाज लाइक लीडरशिप एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। When you graduate from the universities or you enter to the practical life and you enter into the career life, वहां पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपके जो टेक्निकल नॉलेज है जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम फिजिक्स रिलेटेड फ्रॉम फिजिक्स, तो फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स और ये जो सब्जेक्ट मैटर कोर्सेज में पढ़ाते हैं, या फिर अगर मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करूं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो ये टेक्निकल स्किल्स है। इन टेक्निकल स्किल्स के अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए होते हैं। ठीक है, उसमें एक जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो है लीडरशिप। लीडरशिप पे काफी ज्यादा फोकस भी किया जाता है। आप देखेंगे कि काफी सारे जो है ना एस्पायर प्रोग्राम है, या इसी तरह जो है ना अगर आप मिलेनियम फेलोशिप को देख लें, या इसी तरह जो है ना आप
गिटहब वालों को देख लें, यूएनडीपी के प्रोग्राम्स को देख लें, हर जगह पे जो है ना एक बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि भाई आप स्टूडेंट्स की लीडरशिप स्किल्स पे काम करें। तो एलुमनाइट भी one of the program of the alumni is to develop the leadership skills of the students and the alumni. Next one is career. काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ना हमारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो जब यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन वो करते हैं तो इनका एक मेजर कंसर्न ये होता है कि भाई मैं ग्रेजुएट कर लूँ तो उसके बाद मुझे जॉब में जो है ना कैसे कितना जल्दी मुझे जॉब मिलती है और कितनी अच्छी मुझे जॉब मिलती है। इसके साथ अल्टरनेटिव वो दूसरा भी है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू के अगर वो खुद अपने लिए जॉब क्रिएट करें और दूसरों के लिए भी जॉब क्रिएट करें। तो एलुमनाई का एक एरिया जो है ना पर्टिकुलरली करियर डेवलपमेंट पे फोकस करता है। Then from time to time we organize different types of events related to skills development, related to career development, related to study abroad. So our members can participate in these events as well. Not only participate, बल्कि मैं आपको जो है ना I feel very proud कि so far इनकी ये 4,000 तक हमारे कम्युनिटी मेंबर्स पहुंच चुके हैं। 4,000 कम्युनिटी को सारे के सारा जो मैनेज कर रहे हैं वो सारे वॉलंटियर्स हैं। Majority of them are the volunteer students. And some of us, including me, I am also alumni of the University of Peshawar. Of official capacity bhi hai, like at the same time, I'm alumni of the University of Peshawar. So all of us are volunteering this whole initiative. ये सारी community सब के सब जो है ना volunteers manage कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है ना न सिर्फ इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बल्कि इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, इवेंट मैनेजमेंट सीखना, टीम बिल्डिंग जो है ना हमारे अभी जो सेंट्रल टीम्स हैं और एम्बेसडर्स हैं दे आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजिंग दीज इवेंट्स। सो दे आर गेटिंग रियल लाइफ practical experience of managing these events. So you have these options as well. And the best thing is, like I told you, अभी तक हमारे पास जो है ना, for example, मैं तैयबा को ले लूँ, हमारे पास पेशावर यूनिवर्सिटी में ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का कोई प्रोग्राम नहीं है। I think there is one, but that is in College of Home Economics. Now, when these different universities are joining us in this initiative, so if somebody is having some problem, why not like just get in touch with students from that particular area and utilize their expertise to solve the problems of students in another discipline. तो ये interdisciplinary जो collaboration है, ये भी जो है ना अभी हम उसको देख रहे हैं, काफी मजे के initiatives और काफी creative initiatives हमारे सामने आ रहे हैं। And all of us are there like to support each other. So that's why ये शारिक खलील ने specifically इसमें डाला था कि the community that got your back. So if you are in trouble, we would be there to help you out. ठीक है? Now, this was like the benefits for the students. You can go to that membership page. वहाँ पे इसकी descriptions वगैरह भी लिखी हुई हैं। यहाँ पे आपको short introduction दिया था। अब जो question आता है कि भाई, because most of you over here are ambassadors or the central team members, so if you have this question that how we can invite students to join, it's pretty simple. इसमें यहाँ पे जो है ना ये link available है, alumni.pk for students. They can register over here. ये सारे जो benefits हैं ये इस पेज पे भी mention है और इस पेज के आखिर में आपके पास registration form भी है। उस registration form पे जो है ना वो directly apply भी कर सकते हैं, and we are using automated systems, so they get approved and they get invited into different groups that we are having. उसमें automatically उनको invitation via email चली जाती है। Next, to give you a quick overview कि भाई जो है ना alumni का structure क्या है, तो first of all let me clarify कि all of us are volunteers. Some of us are like alumni of the University of Peshawar and also working as staff members of the University of Peshawar, but majority of us are students.
सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं। हमारे पेशावर यूनिवर्सिटी में जो हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि ऑन द टॉप वी हैव सेंट्रल टीम्स. There are different teams like a community outreach team, community engagement team, we have skills development team, we have study abroad team, we have career development team. इसी तरह event management की है. मीडिया में जो है ना हमारे पास सोशल मीडिया टीम है, उसके अलावा फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी टीम है, इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम है. Another one is like to facilitate collaborations and partnerships. So collaboration and partnership की team है. Very soon we are going to have these fundraising and sponsorship team, which is going to like generate sponsorships and grants for different initiatives of the alumni. तो टॉप पे हमारा जो है ना अब ये है, लेकिन इससे पहले जो था हमने इसको बहुत सिंपल रखा हुआ था. I personally believe that we should like grow organically. So we were not having central teams. We were having ambassadors at top level. ठीक है, एम्बेसडर्स इस तरह थे कि भाई जो है ना वो एलुमनाई को रिप्रेजेंट करते थे अपने डिपार्टमेंट्स के लेवल पे. और डिपार्टमेंट के लेवल पे एम्बेसडर्स के अलावा हमारे पास जो है ना सीआरस और जीआरस भी थे. उनका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है डाटा वेरिफिकेशन में, कम्युनिकेशन में और इन सारी चीज़ों में. एंड देन एट द लोएस्ट लेवल वी वर हैविंग द स्टूडेंट्स. ये बाकी सारे एम्बेसडर्स, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड जीआरस और सीआरस जो थे ये बेसिकली थे टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स. नाउ एट द नेक्स्ट लेवल currently at University of Peshawar हम जो है ना ambassador के level को cross कर चुके हैं and we have moved to the central teams. So at top we are going to have all the central teams. Then we are going to have at the departmental level we are going to have ambassadors, CRs, GRs and students. So the central teams are going to work in collaboration with ambassadors and the CRs and GRs to provide support to the students. आपके चूंकि agriculture university वालों का हम जब इसको स्टार्ट कर रहे थे तो तैयबा के साथ मैं जब इनके डिस्कस कर रहा था तो इनको मैंने कहा कि भाई तैयबा ओके फॉर द एक्सटर्नल यूनिवर्सिटीज अदर देन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर वी आर गोइंग टू हैव वन रिप्रेजेंटेटिव ताकि हमारा फोकल पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कम्युनिकेशन चैनल हमारा क्लियर हो. सो देयर शुड बी वन lead ambassador at another institution like lead ambassadors at Agriculture University of Peshawar, lead ambassador at Islamic College University है, lead ambassador at Edwards College, इस किस्म का होगा. फिर उनके साथ जो है ना अपनी टीम होगी जो कि ambassadors की होगी and they would be from different departments. Like currently as far as I know Agriculture University में आपका IBMS है, Computer Science का डिपार्टमेंट है, Human Nutrition and Dietetics का है, IT का है, हॉर्टिकल्चर का है. इस तरह जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनसे जो है ना हम एम्बेसडर्स को करेंगे और फिर ये एम्बेसडर्स लीड एम्बेसडर के साथ काम करके मेंबरशिप कैंपेन्स, अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स और जितने भी जो है ना हमारे कोर्सेज हैं या हमारे सेशंस हैं या इवेंट्स हैं इनके वी वुड बी communicating all these programs and initiatives through these ambassadors. And once you have like a good number of members and good number of ambassadors, then what you can do is कि भाई आप जो हमारा जो ये मॉडल है कि भाई सेंट्रल टीम्स वाला वो आप अपनी यूनिवर्सिटी में उसको भी जो है ना रेप्लिकेट कर सकते हैं. आई थिंक that's enough from my side. Now I would open the platform for questions. If anyone is having any question, do let me know and I would try to answer them. Okay, Arisha ने ये क्वेश्चन किया है कि सेंट्रल टीम वाले सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से होंगे. यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का एलुमनाइट का जो चैप्टर है उसके सेंट्रल टीम में सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के होंगे, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो सेंट्रल टीम्स होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे एम्बेसडर से. और यूईटी वाली जो होंगी सेंट्रल टीम, हम जो है ना यही मॉडल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का रेप्लिकेट करेंगे इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. तो हर एक जो है ना जो यूनिवर्सिटी है उसका अपने एम्बेसडर्स होंगे, अपने सीआरस जीआरस, उनके अपने सेंट्रल टीम्स होंगे. एंड व्हाटएवर वी डू ओवर हियर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर,
हम जो है ना वो सारी चीजें तैयार उनको देंगे ताकि वो एज सुन एज पॉसिबल वो क्विकली हमारे एक्सपीरियंसेस से लर्न करके अपने सिस्टम डेवलप करें। एक क्वेश्चन ये था कि यूवीटी पेशावर के स्टूडेंट्स है इसमें। यूवीटी पेशावर के हमारे पास तकरीबन अभी करंटली जो है ऑलमोस्ट 400 प्लस स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। जी हाँ, हमारे पास हर यूनिवर्सिटी में हम स्टार्ट जो है एम्बेसडर से लेंगे, उनके लीड एम्बेसडर को सेलेक्ट करेंगे, फिर लीड एम्बेसडर को सपोर्ट करेंगे कि वो जो है ना अपने साथ उस यूनिवर्सिटी के एम्बेसडर सेलेक्ट करें टीम। फिर जो है ना जब उनकी मेंबरशिप चली जाए और उनकी अवेयरनेस कैंपेन्स चले जाएं और उनकी मेंबरशिप कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स उनके पास मेंबर्स बन जाएं, then they can go for their own central teams as well. Yes, ये क्वेश्चन आ गया है कि भाई जो है ना उस यूनिवर्सिटी में एम्बेसडर्स की टीम कौन सेलेक्ट करेगी। तो अब जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, Tayyiba was introduced to us because of her sister, who is student at University of Peshawar, and she was active and she was in touch with different activities of alumni. So we requested her कि भाई आप इस टीम आप लीड एम्बेसडर बन जाएं। फिर उनको हमने गाइडलाइंस दी थी कि आप जो है इस तरह करें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है वहां से जो है ना आप एम्बेसडर्स को रिकमेंड करें। तो इनिशियल लेवल पे यस, जो लीड एम्बेसडर होता है वो रिकमेंडेशन देता है कि भाई ये मेरे पास एम्बेसडर्स की टीम है। लेकिन देन इन द सेकंड स्टेज वी हैव अ वेरी गुड सिस्टम दैट आई कॉल एज द एंगेजमेंट स्कोरिंग सिस्टम। उसमें ये होता है कि भाई जो एम्बेसडर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट्स को, उनको डिफरेंट स्कोर पॉइंट्स मिलते हैं। अगर वो जो है ना स्टूडेंट्स को रजिस्टर करवाते हैं, मेंबरशिप करवाते हैं, तो उनको उसके स्कोर पॉइंट्स मिलते हैं। सो ये एंगेजमेंट स्कोरिंग सिस्टम जो है अगर ये 1 महीना चल जाए, 2 महीना चल जाए, तो वो एम्बेसडर्स जो कि टॉप परफॉर्मिंग होते हैं, जिनके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, तो उन पॉइंट्स की बेस पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं कि वो प्रोग्रेशन करें सेंट्रल टीम्स की तरफ। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स आ जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम प्रोग्राम चला रहे थे उसका गूगल करियर सर्टिफिकेट्स का, तो उसमें हमारे पास लिमिटेड लाइसेंसेस थे। तो वो लिमिटेड लाइसेंसेस अब हम जो है ना सारे स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते थे। तो डेफिनेटली जो हमारे एम्बेसडर्स थे या जो हमारे सीआर्स और जीआर्स थे या हमारे स्टूडेंट्स थे जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व थे, उनके स्कोर पॉइंट्स हाई थे, सो वी गेव देम द प्रायोरिटी टू अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज। तो ये एंगेजमेंट स्कोरिंग सिस्टम का जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तैयबा प्लीज रिमाइंड मी ऑफ दैट, I would share it with you, and that is to make it very much clear cut. हमारे पास प्रॉब्लम कुछ ऐसे आ रहे थे एक टाइम पे कि 2 एम्बेसडर होते थे, एक एम्बेसडर जो है ना कोई भी काम नहीं करता था और दूसरा एम्बेसडर जो है ना बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होता था। तो फिर ये जो काम नहीं करता था उसकी वजह से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो डीमोटिवेट होता था। सो देन वी इंट्रोड्यूस दिस एंगेजमेंट स्कोरिंग सिस्टम कि जिसमें जो है ना लाइक इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि भाई मैं किसी की सिफारिश करूं या कुछ और वो करूं या कोई और उसकी करे, तो देयर इज अ वेरी क्लियर कट क्राइटेरिया। जिसके स्कोर पॉइंट्स हाई होंगे they would get more opportunities and they would get like progress to the top level. That's it. उसमें कोई वो नहीं है। So initially we start slow, we start with personal recommendation, but then we move towards the engagement scoring system. It makes it much more clear and it makes it much more transparent. सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक सर, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है माइंड में। मतलब हम इधर जी। से कैसे कोर्स सीख सकते हैं? वो कहाँ मैंने से? आपका पोर्टल देखा था, ये जो आपका जी पोर्टल है ना, वेबसाइट,
तो उस पे जी मैंने थोड़ा बहुत वो काम किया, लेकिन उधर सिर्फ एक ही स्किल मतलब मौजूद है, एक ही कोर्स सॉफ्टवेयर एक ही जी। क्या है। अभी अभी करंटली जो है ना जो एक्टिव कोर्स है वो गूगल सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम का है। एंड जी। in fact, if Sharik would correct me, Sharik is leading the TND. So 3 मेरे ख्याल में और कोर्सेज भी जो है ना पाइपलाइन में है। I think let me invite Sharik. Sharik, can you please answer this question? Yes, sure, why not? Yeah. ओके, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी तो हमारे साथ वालेकुम। कम्युनिटी में सिर्फ एक कोर्स ट्रेनिंग वो लाइव हो चुका है गूगल सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम के नाम से। तो उसमें से आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट एरियाज सीखने का मौका आपको मिलेगा, जिस तरह क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरव्यू स्किल्स, सीवी मेकिंग एंड व्हाट्सओवर। इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स हमारे 3 ट्रेनिंग्स और भी लाइव हो जाएंगे। तो उसमें से जिन लोगों को फोटोग्राफी का शौक होगा, वीडियोग्राफी या वीडियो एडिटिंग, तो वो लाइव हो जाएगा। इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट स्ट्रगल टू मीट देयर पॉकेट मनी और फाइनेंशियल चैलेंजेस उनको होते हैं। सो दैट इज़ वाई हमारे 1-2 हफ्तों में फ्रीलांसिंग का जो कोर्स होगा, ट्रेनिंग लाइक फुल फ्लेज, एक बेसिक से लेकर एक फुल एडवांस लेवल तक, तो वो भी हमारा लाइव हो जाएगा। और इंशाल्लाह मंडे से हम लिंक्डइन का वो लाइव कोचिंग प्रोग्राम वो लॉन्च कर रहे हैं। सो लिंक्डइन का जो वो फॉर्म होगा वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, सो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी हमारे पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा चीज़ें वो आ रही है। आयत हमारा जो है ना, जिस तरह वो मैंने आपको कहा कि सेंट्रल टीम्स है ना, उसमें हमारी जी। एक टीम जो है वो स्पेसिफिकली स्किल्स डेवलपमेंट पे काम कर रही है। ठीक है, तो अच्छा। वो जो है ना, जिस तरह हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जिस तरह शारिक ने आपको बताया कि एक लाइव है, 3 हमारे जो है ना पाइपलाइन में है, वो इसी तरह सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम की तरह हैं, वो भी जो है ना पोर्टल में आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो है हम एक यही टीम एक और चीज पे भी काम कर रही है, वो ये है कि डिफरेंट वर्कशॉप्स, डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट सेशंस, वेबिनार्स, इस किस्म की चीजें related to research, related to innovation, related to commercialization, उस चीज पे भी जो है ना हम लोग काम कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह ये सेंट्रल टीम्स हम बनाए इसलिए रहे हैं कि वी आर ग्रोइंग एंड हम ये चाहते हैं कि भाई हर एक चीज की अपनी इंडिविजुअल टीम हो, ताकि जल्द से जल्द वो जो है ना अपनी चीजों को प्रोसेस कर सके। जी सर, ठीक। एनी अदर थैंक क्वेश्चन? यू सर। नो, नो अदर क्वेश्चन। ओके, किसी और का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? सबको रोजे लगे हुए हैं मेरे ख्याल में। सर जी सर मैं ना फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो आपके साथ कोई भी मतलब ऐसा बंदा है या कोई जो हमें थोड़ा गाइड कर सके? किस किस्म की चीज पे? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स में स्पेसिफिकली किस चीज पे? मतलब जैसे हम सुनते हैं ट्रेडिंग वगैरह। ओह यस वी हैव, दोस्त मोहम्मद साहब हैं, कायदे आजम कॉलेज में वो लेक्चरर भी हैं, एंड अच्छा। ही इज वन ऑफ द वॉलंटियर्स ऑफ एलुमनाइट एज वेल। सो जस्ट गो एंड मीट हिम, और वो आपकी जो है ना इसमें गाइड कर देंगे आपको। सर आपको पता है कि वो मतलब इंडाइसिस को या ट्रेड करते हैं या फॉरेक्स को ट्रेड करते हैं? वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन उनके पास जो है ना लोग, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस चीज में जो है ना क्रिप्टो करेंसी में और ट्रेडिंग में और इन चीजों में इन्वॉल्व है। ही वुड गेट यू कनेक्टेड विद देम। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर। ये दूसरा मोहम्मद नवीद ने भी हाथ उठाया हुआ है। जी नवीद। सर जी, अभी आपकी बात से याद आया क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आई थिंक वी शुड हैव अ सेशन ऑन दिस। वी शुड हैव टू इनवाइट समवन जो इस पे सेशन दे, क्योंकि फ्यूचर आई थिंक क्रिप्टो करेंसी का ही है। तो क्यों ना इस पे एक सेशन की या कोर्स रिकॉर्ड की जाए जो प्लेटफॉर्म पे हम फिर अवेलेबल करें। यार मैं तो जो है ना सबको ये कहता हूँ कि अगर आप जो है ना किसी एक्सपर्ट को जानते हैं
जो कि इस किस्म के सेशंस के लिए जो है ना एग्री करेगा, जस्ट पॉइंट देम आउट and tell me on behalf of the University of Peshawar, I would request them and they can come and take the sessions. There is no problem with that. Inshallah sir, okay. लेकिन there are so many things that currently जो है ना ये teams बनाने का मकसद ही है कि there are so many things on my plate that honestly speaking मुझसे रह जाती हैं. ठीक है, तो ये सेंट्रल टीम्स और आप लोग जो है ना जो वॉलंटियर्स हैं ये रिकमेंडेशन दे, why not, we can do it. We can arrange these sessions. In-person session भी हम arrange कर सकते हैं, online sessions भी arrange कर सकते हैं. ये प्लेटफॉर्म तो हमने बनाया इसलिए है कि इस किस्म की एक्टिविटीज, एकेडमिक और प्रोफेशनल, ये एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा हो जाए. Inshallah sir. Inshallah. Thank you for asking these questions and thank you for being over here. Still, if you have any issue or you have any question, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले तैयबा के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है ना वो डायरेक्टली मुझे भी व्हाट्सएप, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, उस पर भी मुझे भेज सकते हैं. ओके, बेस्ट ऑफ लक.